इट्स क्लियर? और होमवर्क Yes, भी sir. सेंड नहीं कर रही है रिया, होमवर्क भी आपका नहीं आ रहा है गूगल क्लासरूम में? बिल्कुल कुछ भी आप सेंड नहीं कर रहे हो। चांदनी आप भी बच्चे, ठीक है, सभी कोई गूगल क्लासरूम में सेंड कीजिए। ओनली 2-3 चिल्ड्रन सेंड देम, ठीक है? सभी बच्चे सेंड करेंगे। अगर उनको प्रॉब्लम होता है आप टॉक कीजिए, ठीक है, बात करेंगे मेरे से कि सर आई हैव प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे गुंजन को देखो प्रॉब्लम हुआ, उसने बोला सर मैं प्रॉब्लम था, ठीक है? तो आप ऐसे बताओगे तब हमें पता चलेगा ना। बिल्कुल बच्चे, होमवर्क नहीं आएगा बिल्कुल मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर, बिल्कुल, या उस बच्चे को मैं बिल्कुल रिमूव कर दूंगा जिस बच्चे का सिर्फ क्लास वर्क आएगा ओनली, ठीक है? अगर आपको कोई इशू होता है आप सीधे बोलेंगे बच्चे। आप पीटीएम भी अटेम्प्ट किए थे, उस समय भी आपको बोलना चाहिए था किसी को भी कोई प्रॉब्लम इशू, इसीलिए पीटीएम रखा गया था, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल आप सभी ध्यान रखेंगे। अगर आपको होमवर्क सेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है सो यू आस्क मी, ठीक है? सर आई हैव डाउट। क्लियर? क्लियर है चांदनी? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. रिया क्लियर? Sir. हाँ, और टाइम पे बैठो रिया। हाँ, वीडियो ऑन करके। सोनाली चलो, सो वी स्टार्ट हियर। सो वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5, ओके? 11.4 का, ठीक है, 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6, to cross road each of with 10 meter and cut and right angles through the center of the rectangular park. The length is the 700 meter, breadth is a 300 meter, and the parallel to opposite side, ठीक है? Parallel to opposite side, that means both opposite sides are equal, okay? Find the area of road. That time you find the area of road. Then and also find the area of road and also find the area of par including cross road. Give the answer in hectare, ठीक है? So give you answer in hectare, okay? So first we draw the figure. Rectangular shape में आपका is given to the park, okay? And here the ठीक है, this is the park and given to the A side them A B C D, ठीक है? And here two cross road, ठीक है? Cross road, that means the this one road and this one is the second road, okay? So cross road name is P Q R S. First cross road we take the name is P Q R S. Second here we take E F G H, ठीक है? E F G H, okay? And here we see that this area, ठीक है, this area make to the square shape, ठीक है? This area make a square shape and here you take the name is K L M N, ठीक है? So first again एक बार क्वेश्चन देखते हैं। टू क्रॉस रोड, ठीक है? So first है P Q R S and the second one is E F G H, ठीक है? टू क्रॉस रोड, each of the width is 10 meter, दोनों की width is 10 meter and the center of the rectangular park is length is 700 meter, ठीक है? Length of park is 700 meter and the breadth is 300 meter, okay?
So breadth is 300 meter, length is 700 meter. Okay, and here maker we see that a square shape, and we name them the KLMN. Okay, name is KLMN. So find the area of road. ठीक है, that means इस area road का area find करना है. We find the first area of road and also find the area of park including क्रॉस रोड. ठीक है, क्रॉस रोड के साथ आपको इंक्लूडिंग करके इन राइट टू द हेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू को आपको लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट गिवन वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं. गिवन, सो फर्स्ट विड्थ ऑफ द क्रॉस रोड PQ is equal to 10 meter. PQ is equal to 10 meter. फिर अनदर साइड भी देख टेक हियर PS. हाँ बोलो बच्चे. Good afternoon, sir. Very good afternoon. So PS is a represent to the breadth. So PS is equal to 300 meter. Okay, या AD यूज कर सकते हो या BC भी यूज कर सकते हैं, QM भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, so breadth is the 300 meter. And next here this one EF या EH ले लेते हैं. EH. ओके, EH ये भी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा, FG भी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा, बट हेयर वी टेक द EF. ठीक है, ये भी 300 ही होगा. एंड हेयर वी टेक इज EF. So EF given to the 10 meter. ठीक है, both cross road width is a 10 meter. That means here their length is 10 meter and EF is also 10 meter. Okay, GH is also 10 meter. MN is 10 meter. ठीक है, so width is 10 meter. Then next you take here length. So here you take the length is 700 meter. ये EH 700 होगा. ठीक है, EH is represent to the length is 700 meter. AB is 700 meter. DC is 700 meter. Okay, FG is also 700 meter. So it's represent to the length. And here we take the KL. So KL make a square shape. ठीक है, KLM is a make a square shape, that means the 10 meter. And another side you take here KN length is the 10 meter and the breadth is also 10 meter. 10 meter. ठीक है, clear. अगेन एक बार जल्दी से देख लेते हैं. PQ it is a breadth of the cross road. ठीक है, रोड की breadth is 10 meter. Another side EF is also 10 meter. So here PS we take the breadth. So breadth is 300 and EH is a represent to the length is 700 meter. KL again breadth is a 10 meter. So here you take the 10. Another side length is also 10 meter. Breadth is also 10 meter and length is also 10 meter. But here the shape is square. This is the shape of square shape. Okay, so first we find the area of road. Area of road. ठीक है, फिगर क्लियर है बच्चे सबको? किसी को डाउट फिगर में? No, sir. ओके, और वैल्यू हाँ कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं. देखो AB EH FG और DC it's all are represent to the rectangular length. ठीक है, रेक्टेंगुलर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो here we write the EH. हमने ले लिया EH is a 700 meter. ठीक है, and you take the breadth. So breadth is AD BC PS या QR all represent to the breadth. So breadth is given to the 300 of square part. ठीक है, स्क्वायर पार्क का ब्रेथ हो गया. Then here we take the
PQ. So PQ is a wide of the road. ठीक है, रोड की वाइड कितनी दी है? 10 meter. So here you put them 10 meter. That means all PQ, KL, MN, ठीक है, EF और GH, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है इज अ 10 meter. ठीक है, इज अ 10 meter. So here you take the length and breadth also. But here we see that a क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है, जहां ये रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, सो दे क्रॉसिंग, सो हेयर मेक अ स्क्वायर शेप, ठीक है, जहां ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहां ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है, एंड यू नेम देम द KLMN एंड द लेंथ इज 10 and 10, ठीक है, सो 10 meter लेंथ एंड 10 meter breadth. ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ रोड. सो एरिया ऑफ रोड के लिए फर्स्ट वी टेक हेयर एरिया ऑफ फर्स्ट किसको ले लेते हैं? PQRS को ले लेते हैं. सो एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, हेयर रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है. देन अगेन नेक्स्ट एरिया ऑफ अनदर रेक्टेंगुलर शेप हो रहा है EFGH, ठीक है, बट हेयर वी सी दैट KLM ये दोनों साइड में आ रहा है, ठीक है, PQ साइड से भी ले रहे हैं तब भी KLMN शो हो रहा है, एंड EFGH से भी ले रहे हैं तो ये शो रहा है. तो यू हैव टेक द ओनली वन टाइम, ठीक है, सो ऑलरेडी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, वी ऑलरेडी इंक्लूडिंग टू द PQRS, इसमें हमने इंक्लूड कर दिया. सो दैट मीन्स यू सब्ट्रैक्ट देम दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया सब्ट्रैक्ट होगा. व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी टेकन टू द बोथ एरिया, क्योंकि हमने दोनों एरिया में इसको इंक्लूड कर दिया है. क्लियर है ये लाइन? सो हियर सब्ट्रैक्ट टू एरिया ऑफ KLMN, ठीक है, ये लाइन क्लियर है बच्चे सबको? Yes, sir. ठीक है, सो एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, देन एरिया ऑफ EGFS, ठीक है, ये ले लिया. बट हियर ऑलरेडी यू टेक द KLMN, ठीक है, ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है, ठीक है, बट अगेन यू आर यूजिंग द बोथ साइड, दोनों साइड में आप यूज कर रहे हो, तो इसलिए वी सब्ट्रैक्ट देम द एरिया ऑफ KLM, ठीक है. क्लियर है बच्चे? क्योंकि बिकॉज हेयर वी टेक द 2 टाइम्स, इसलिए वी सब्ट्रैक्ट द KLMN, ठीक है, बस. सो एरिया ऑफ PQRS, हेयर वी सी दैट इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. सो लेंथ हेयर यू टेक PQ, ठीक है, लेंथ ले लेते हैं, एंड ब्रेथ. सो PS इज रिप्रेजेंट टू लेंथ एंड PQ इज रिप्रेजेंट टू ब्रेथ. Okay, then plus area of each. So here again area of, so length is EH multiply breadth is EF. So here you take EF, then subtract area of KLM. So KLM, that means here the square shape, that means side into side. So side here you take KL multiply KN. Okay, so here put the value PS is equal to, ठीक है, PS and PQ you take here 300 multiply 10, ठीक है, then here EH is 700 multiply 10, okay, and then minus KL is equal to 10 multiply 10, ठीक है. दिस स्टेप ओनली वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल, ठीक है, सभी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया. सो हियर 300 multiply 10, सो 3000, 700 multiply 10, 7000, then 10 multiply 10 is equal to 100. So this is the, say, 3000 plus 7000 is equal to 10,000 minus 100. So your answer is 9,900 meter square. This is the area of road. ठीक है, 9,900
meter square, it is the area of road. ठीक है, so area of road we find them. Then next the question is area of road in a change into the hectometer. ठीक है, area of road को you convert to the hectometer. So area of road, so area of road you find them 9,900 मीटर स्क्वायर, बट वी कन्वर्ट टू द हेक्टोमीटर. ठीक है, तो कल ही हमने हेक्टोमीटर का किया था. सो हेयर वी डिवाइडेड बाय द 10,000. ठीक है, सो हेयर यू राइट 9,900 अपॉन 10,000 एंड हेयर यू राइट द हेक्टोमीटर. ठीक है, एंड यहाँ यूज भी कर लेते हैं हम कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टर. ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं डेसिमल पोजीशन 1 2 3 4. ठीक है, 4 डिजिट है, दैट मीन्स 4 डिजिट के बिफोर. सो 1 2 3 4, so that means 9900 decimal 4 digit के before. So here answer is 0.9900 हेक्टोमीटर. ठीक है, ठीक, तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिया इसी का. इसी में एक और क्वेश्चन दिया था कि एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड. अगर एरिया और पार्क में अगर आप रोड को हटा दो, ठीक है, इस रोड के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना हमें. ठीक है, रिमूव देम. सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क. ठीक है, व्हेन इफ यू एक्सक्लूडिंग. ठीक है, सो हियर यू राइट देम. यहां तक क्लियर है बच्चे, किसी को डाउट? फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ No, रोड. sir. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट सेम इसी में क्वेश्चन दिया है. एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क बट यूजिंग एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड. ठीक है, विदाउट रोड. ओके, सो फर्स्ट यू राइट द एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क, देन सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड. ठीक है, क्लियर है? एरिया ऑफ पार्क देन सब्ट्रैक्ट देन द एरिया ऑफ रोड. सो एरिया ऑफ पार्क इज length into breadth. So length here you take, length is given AB and AB length and AD is breadth. Yeah, BC you take here. So BC. And area of road you have already find 9,900 meter square. So 3 length is equal to 700 multiply breadth is equal to 300 minus 9,900. 7 3s are 21. 7 3s are 21 and here 2 and 2 4 0. So okay, then subtract 9,900. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 0 0, फिर the borrow, so 10 minus 9 is equal to 1, 9 minus 9 is equal to 0. इसको borrow दे दिया था, so here is also 0. ठीक है, ये also 0 हो जाएगा. then rest of 2, that means 2 lakh meter square, 2 lakh meter square. ठीक है, ठीक है. और अगर इसको भी हेक्टोमीटर में यू कन्वर्ट देम, क्योंकि इसको भी बोला है यू चेंज द हेक्टोमीटर. सो 2 lakh divided by 10,000 hectare. Okay, so again decimal position is you take here 4 digit 1 2 3 4. So 2 0.0103
हेक्टर्स। ठीक है, तो आप इसको सिंपली फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो 220.01 हेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। How to find the area of park excluding the crossroad? Without crossroad case, so simple we subtract them the area of road in area of park. So area of park is equal to 70 multiply 700 multiply 300. So here you write them 2,10,000 meter square, 2,10,000 meter square, and you subtract them 9,900 meter square. So जैसे हमने इसको subtract किया, rest of the 2,100 meter square. ठीक है, but here the question is you convert to the meter square in a hectare. So here we 2,100,000 divided by 10,000, because we know that 1 meter square is equal to 1 upon 10,000, 1 upon 10,000 hectometer. So here you divide them. So rest of number is 20.01 hectare. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, सिंपल इसको स्टेप में आप ध्यान रखना. फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ रोड, then second area of road you convert to the meter into the hectometer, then third area of park excluding cross road. ठीक है, without road के you find them the area. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया. Then question number 7. Question number 7 भी same as it is ही क्वेश्चन दिया है, जिस तरह भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं. सेम यही फिगर हमारा बनेगा. क्वेश्चन क्या है? थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज अ 90 मीटर लेंथ एंड द ब्रेथ. ठीक है, लेंथ इज गिवन 90 मीटर and breadth is given to the 60 meter. So two road constructed and which are the parallel. ठीक है, parallel side मतलब ऐसे opposite sides में बन रहा है. ठीक है, so two parallel sides and cut each other at the right angle. ठीक है, जैसे इसमें कट हुआ था and make a right angle. So same here, इधर same question number 7. ठीक है, angle through the center of the field if the width of the each road is 3 meter. ठीक है, here the question में 10 meter था, but this time the given to the 3 meter. ठीक है, so again you find the covered by the road. ठीक है, covered by the road, that means area of road आपको again find करना है. ठीक है, area of road again find करेंगे. ठीक है, सेम यही प्रोसेस यूज करना बच्चे. ठीक है, क्लियर है? एरिया में सेम ये आपको सॉल्व करना. ठीक है, तो फर्स्ट यू फाइंड देम द एरिया ऑफ रोड. ठीक है, एरिया ऑफ रोड आपने फाइंड कर लिया. देन सेकेंड इज क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एट द रेट इज 110 रुपीज. ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 110 रुपीज से आप मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? किसी को डाउट? मैम क्लियर है बच्चे? यस सर. यस मैम, क्लियर क्वेश्चन बच्चे? मैम यस सर. ओके, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन करेंगे. मनीषा क्लियर? यस सर. रिया? यस रिया ओपन योर वीडियो. रिया? यस सर. ठीक है, ओके. रोहन क्लियर है बच्चे? रोहन? रोहन इट इज क्लियर बच्चे? गुंजन? गुंजन क्लियर है बच्चे? गुंजन? गुंजन? यस सर. क्लियर है बच्चे? कोई डाउट इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में? ओके, ठीक है. और कोई बच्चा? अरशद, सोनाली?
चलो ठीक है, म्यूट कर लीजिए बच्चे एंड ओपन योर वीडियो, ऑलवेज वीडियो ओपन करके रखेंगे आप, ठीक है। So this is the question number 6 and 7 as it is. You only find the area of road, first question, and the second you find the construction amount. ठीक है, construction करने में जो भी amount लग रहा है, so per meter is given to 110 rupees. ठीक है, पर मीटर कॉस्ट कितना लग रहा है, 110 रुपीज. सो हेयर यू फाइंड देम, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 110 रुपीज को. ओके, so this is the question number 7 is completed. So we start the question number 8. So question number 8 given, Pragya wrapped a cord around is a circular pipe of the radius is 4 centimeter adjoining the figure and cut of the length required of the cord. Then she wrapped in around the square box and the side is 4 centimeter. Okay, so it around the square box is a 4 centimeter. Already figure show किया गया है. So look at the figure. And did she have any cord left? Okay. So figure, first of all आप figure समझ लो, figure कैसा हमारा दिया है. Two circle here make. बच्चे mute yourself. Mayank mute कर लो बच्चे. Okay. So here given the, this is the length is 19 meter. बच्चे फिगर यही है ना, सर्कल वाला ही है. Yes, sir. Yes, sir. टू सर, हाँ ठीक है. देखो, so is given to the question number 8, radius of pipe is 4 centimeter. Radius of pipe is given to the 4 centimeter and wrapping cord around circular pipe. ठीक है, तो सर्कुलर पाइप के चारों ओर राउंड कर रही है. ठीक है, रैपिंग इज, सो आउटर दैट मींस 2 पाई आर, आउटर के लिए 2 पाई आर. सो हियर यू टेक द 2 पाई वैल्यू है, यू टेक हियर 3.14 एंड आर इज गिवन टू द 4. ठीक है, सो 4 2 जा 8 हो जाएगा. 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 8 1 जा 8 plus 3 11, 8 3 जा 24 plus 1 25. So decimal before 2 digits, so here you take the 2 digit. So the circumference हमारा वेपरिंग का कितना आ गया, 25.12 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन, वेपरिंग कोड अराउंड द स्क्वायर. अगर वेपरिंग जो कोड है वो स्क्वायर शेप का है. ठीक है, इफ यू टेक द square shape, so again wrapping cord, so wrapping cord, so cord vapor on the cord square shape, square. So that means again outer हो रहा है, so outer layer के लिए that means perimeter, so 4 into side 4 and the side is given to the again 4 centimeter. ठीक है, because radius है, that means the all side are the same, all side are represent to same. So 4 centimeter, so 4 plus 4 multiply 4 4 जा 16 centimeter. ठीक है, then remaining chord. ठीक है, remaining chord,
तो रिमेनिंग कॉर्ड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट यू टेक द कॉर्ड वेपर द पाइप एंड सब्ट्रैक्ट देम द कॉर्ड रैप द ऑन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रेडियस दोनों, सॉरी सर्कल, उसके कॉर्ड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी लेफ्ट बचेगा इज रिमेनिंग कोड, ठीक है। सो हियर यू राइट द remaining chord. So remaining chord is chord wrapping chord of the round circle, ठीक है, जो हमने सर्कल के किया था। So chord wrapper on pipe, then subtract wrapping chord of chord wrapped on square, ठीक है। So here पाइप का 25.12 सेंटीमीटर and the cord wrapping on square shape, so square shape में 16. So here 25 is a whole number and 16 is a whole number. So 25 minus 16 is equal to 9. Okay, and 12 you write the as it is. So 9.12 centimeter left, 9.12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो हियर टू फिगर्स थे, द फर्स्ट फिगर इज सेम था, स्क्वायर शेप में था। सो स्क्वायर शेप का यू रेफर कर रहे थे। सो साइड इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड अगेन द सेम साइड इज गिवन टू द रेडियस में भी 4 सेंटीमीटर दिया था, और रेफरिंग इज around a circular shape. So circular shape outer layer में both में कर रहे हैं, so here you take the perimeter, ठीक है, दोनों में ही हम perimeter यूज करेंगे। So circular का perimeter is that means 2 pi r and the square perimeter is 4 into sine. So simple you put then the value of both, okay, दोनों की वैल्यू पुट कर देना एंड सब्ट्रैक्ट देम फॉर द रिमेनिंग कोड, ठीक है। रिमेनिंग कोड फाइंड करने के लिए सिंपल वी सब्ट्रैक्ट देम, ओके, clear? Yes, sir. Okay, then question number 9. So question number 9 is given. Question number 9. Again the question is the adjoining figure, again two figure hai, and the represent a rectangular lawn with the circular flower bed in the middle, ठीक है। rectangular ground है या पार्क जो भी दिया है, उसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, एंड द फाइंड द एरिया। अब इसमें 4 क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज एरिया ऑफ द होल लैंड, एरिया ऑफ द सबसे पहले फिगर में हम समझ लेते हैं दिस टाइप द रेक्टेंगुलर लॉन एंड हियर द मिडिल इन अ सर्कुलर फ्लावर बेड, इसके मिडिल में सर्कुलर फ्लावर बेड है, एंड गिवन टू द रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है, रेडियस इज 2 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन इज 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज गिवन टू द 5 मीटर, ठीक है, क्लियर है, इट्स 2 मीटर, ठीक है, क्लियर। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ द पार्क इज 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज द पार्क इज 5 मीटर, ठीक है, क्लियर, क्लियर है बच्चे, क्वेश्चंस क्लियर है, दिस टाइप ये आपका Yes, फिगर है। sir. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ होल लैंड, area of whole land, area of whole land. So area of whole land that means किसके बारे में बात हो रहा है, लॉन के बारे में, ठीक है। तो लॉन that means the length into breadth. So already is given length is length multiply breadth. So length is given 10 meter and breadth is given to the 5 meter. So 10 5s are 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
second question is, ठीक है, यहाँ लिख लो, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 5 मीटर, and the radius is given 2 meter. So second question is the area of the flower bed. Area of flower bed. So area of flower bed, that means pi r square. So pi value here we take the 3.14. 3.14 and r value is given to, so 3.14 multiply 4. 4 4 ja 16, 4 1 ja 4 plus 1 5, 4 3 is the 12. So 12.56. Next, area of the lawn is the excluding the area